इस मिनिस्ट्री के बारे में बताऊँ तो 1000 साल पुराना है। इसको बनाए अभी नालंदा विश्वविद्यालय आप सुना था ना। बहुत इनलाइटन हो के 2563 साल हो गए। बहुत इनलाइटन। সবাইকে গুড মর্নিং। এই পাশে আমার সাইকেল আছে, ওই পাশে দেখো দূরে আছে ওয়ার্ল্ড হাইস্ট পোস্ট অফিস। আমি আছি এই পাশে, কালকে আমি ছিলাম ওই পাশে। দেখো একটা ঘর দেখতে পাচ্ছি, ঘরে ছিলাম একটা আন্টির বাড়িতে। আজকে নিয়ে হলো বাঁকুড়া থেকে লে লাদাখ 126 দিন। এই জায়গার নাম হলো হিকিম, হিমাচল প্রদেশ। এখান থেকে আমি যাচ্ছি কি মনিস্ট্রি, এখান থেকে 20 কিলোমিটার মতন। দেখো দূরে ভিউটা পাহাড়ের, বড় বড় পাহাড় দেখতে পাচ্ছি সাদা সাদা। আর এদিকে উঁচু নিচু জায়গায় বাড়ি আছে। দেখো বৃষ্টি পড়লো জল দাঁড়িয়ে থাকবে না, একদম এই নিচে চলে যাবে। আমি এখন আছি রাস্তাতে, এই পাশে আমি আছি সাইকেল আমার এই পাশে। খুব সুন্দর ভিউ দেখো, এই পাশটা শুধু বরফ আর বরফ। যারা ঘুরতে যাবে স্পিতি ভ্যালি হিমাচল প্রদেশ কাজা, অবশ্যই তারা বলবো খুব রাস্তা এদিকে ভয়ানক। দেখো এই পাশে পাহাড়ের কলে কলে সাইকেল নিয়ে আমাকে যেতে হবে। একটা মাত্র যদি পাথরের পরে তাইলেই খাতাম। যারা আসবে গাড়ি নিয়ে তারা এগুলো খুব সাবধানে। এই পাশে একটা ছোট দোকানও আছে কিন্তু এখন বন্ধ আছে। ভিউটা দেখো খুব সুন্দর। এখান থেকে কাজা সিটির ভিউটা দেখতে পাবে। ভিউ পয়েন্টটা দেখো, এটা হলো কাজা সিটি। কয়েকদিন আমি ছিলাম 5-6 দিন ওখানে কাজা সিটিতে। আশেপাশের ভিউটা দেখো খুব খতরনাক। এখানে একটা ছবি দিয়ে আছে দেখো, এখানে একটা ঘরের ছবি দিয়ে আছে। এদিকে যা কিছু ঘর, এখানে মাটির ঘর। এদিকে স্পিতি ভ্যালি কাজা। দেখো ভিউটা খুব সুন্দর, অসাধারণ ভিউ, অপূর্ব। দেখো রাস্তা এদিকে যে কোনো সময় পাথর পড়ার সম্ভাবনা আছে। আমি যাচ্ছি সাইকেল ঠেলে, এই পাশে আমি সাইকেল ঠেলছি। যতটা সুন্দর ততটাই খুব খতরনাক। দেখো পাহাড় উপরে ফাট ধরিয়ে আছে, যে কোনো সময় পড়তে পারে। খুব সাবধানে যেতে হবে, হুশ করে। যারা আসবে তারা বলে খুব সাবধান। দেখো শিগগিরই আমি পেরিয়ে যাই ছুটে। দেখছো কত খতরনাক ভিউটা, খুব সুন্দর। কিন্তু এই পাশে দেখো আছে रास्ता, এই জন্য এই रोड को आशा नहीं कर रही। को मेरा एक भाई साइकिल चला रहा है, देख रहा है तुम इतना दूर से कैसे आ चुका हो। मेरा वीडियो बना। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लंजुम है। मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओके जरूर। हाँ हाँ ध्यान से, साइकिल में ब्रेक कम है। हमारे पापा पागल। খুব ভালো লাগে কথাবার্তা বলে। সাইকেল চালাচ্ছি দেখো, ওই দাদা আমার সামনে একটা ব্রিজ আছে। আর আমি এখন যাচ্ছি কি মনিস্ট্রি, এই পাশে রোড আছে। तुमको कैसा लगता है? तुम्हारा इस शहर में जो तो पहाड़ है इधर, कैसा लगता है? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता मैं अभी जा रहा हूँ आपका इधर क्या बोलते हैं, एक ब्रिज है ना, सीचोम ब्रिज जा रहा हूँ। अच्छा। कितना किलोमीटर यहाँ से? यहाँ से ना आपको ऊपर जाएगा 300। अच्छा एक बार से देखो, ध्यान से लेके आओ বন্ধুরা। ওই দেখো দূরে, ওটা হলো কি মনিস্ট্রি সিটি। আর বেশিটা নয়, ভিউটা দেখো খুব সুন্দর। অনেক টুরিস্ট ঘুরতে এসছে, তোমরাও আসবে। অনেক টাকা পয়সা কামাই নিয়েছে, সব একবার খরচা করো। দেখো এই পাশে দেখো গাড়ি যাচ্ছে। এটা হলো স্পিতি নদী। এটা চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। আর এটা নদীটার নাম হলো স্পিতি নদী। আর রাস্তায় যেতে যেতে দেখাই গেল দিল্লি থেকে এসেছে ঘুরতে বাইক নিয়ে। भाई साहब कैसे हो? अच्छा हो ना? बहुत बहुत बढ़िया। मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अच्छा हो गए। ओके, और भी एक भाई है। आपका नाम? मेरा आशु। आपका? कुणाल गांधी। आप सब कहाँ से? दिल्ली से? हाँ जी। दिल्ली से देखो बाइक से आ चुका। देखो जुनून देखो, बाइक से आ चुका, मैं साइकिल में आ चुका। आपका जुनून ज्यादा है। हाँ ये तो 2 साल के लिए वहाँ थे, हटे सरकार बदल गई वेस्ट बंगाल में। हाँ ऐसा है। अभी जा रहा हूँ मैं इधर घूमने के लिए कि मुनिस्ट्री यहाँ से 10-15 किलोमीटर है। और पानी का देखो बहुत साफ पानी, इधर पीने की भी पानी भी है। कुछ लोग काम कर रहे हैं इधर। সাবধানে সাইকেল চালাতে হচ্ছে। আর 2 থেকে 3 কিলোমিটার বাকি আছে। কি সাইকেল আছে দেখো, লেখা আছে ওয়েলকাম টু কি মনিস্ট্রি।
এখান থেকে আর 500 মিটার যেতে হবে, তাহলেই দেখো উপরে আছে দেখা যাচ্ছে কি মনিস্ট্রি। আর আশেপাশের ভিউটা তো খুব সুন্দর, এই পাশের ভিউটা দেখো খুব সুন্দর। এখানেও চাষও হয় বলতে গেলে। দেখো পাশে তো গেটটা আছে কি মনিস্ট্রি যাবার জন্য। আর এই রুটটা যাচ্ছে শিচম ব্রিজ যাচ্ছে, এটা হলো 4 কিলোমিটার। আর এটা হলো সামনে 500 মিটার প্রথমে এটা যাবো কি মনিস্ট্রি, তারপর কালকে তখন দেখা যাবে যাবো ওই পাশে। দেখো এখানে পুরো লাগা আছে, আমি আছি এই পাশে। হাওয়া পথে দিচ্ছে পৌঁছিলাম কি মনিস্ট্রি। এই পাশে দেখো, এই পাশে আছে খুব ফেমাস এটা মনিস্ট্রি, অনেক বছর পুরনো। এটা দূর দূরান্ত থেকে মানুষজন ঘুরতে আসছে। আর ভিউটা দেখো এই পাশের, আমি কোনো স্বর্গে দাঁড়িয়ে আছি। আর গেটটা এই পাশে প্রবেশ করার। আর সাইকেলের ভিতরে আমি রেখে দিয়েছি। দেখো এখানে গাড়ি দাঁড় করানো আছে, এসেছে দূর থেকে। ওই পাশে গাড়ি এলাও নেই নিয়ে যাবার। भाई तुम कहाँ से हो? कहाँ से? बेंगलुरु से। मैं कलकत्ता से साइकिल में आया, वही पास है खड़ा है। ठीक है कि आपको कैसा फीलिंग आ रहा है? इतना सुंदर खूबसूरत पहाड़ है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अच्छा एक्सपीरियंस है। আচ্ছা ভিতরে করলাম প্রবেশ। আর এই পাশে একটা জুলে, জুলে কা মতলব হ্যাঁ নমস্কার, আমাদের বাঙালি বলে নমস্কার। আর মনিস্ট্রি গিফট শপ, মানে যদি কোনো গিফট যদি কিনব বলো সেটার বন্দোবস্ত আছে এখানে। আর সাইকেলটা আছে এখানে। আর আমি এখন যাব ভিতরে কোনো প্রবেশ করব, কিছু জানার চেষ্টা। যত উঠবে তত সুন্দর সুন্দর ভিউ পয়েন্ট দেখতে পাবে পাহাড়ের। আমি আছি এই পাশে, সাইকেলটা ওই পাশে রেখে দিয়েছি। চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। দেখো কেমন লাগছে ভিউটা। এখানে লেখা আছে ওয়েলকাম টু কি মনিস্ট্রি। প্রবেশ করলাম। আর এখানে দেখতে পাবে এটা ঘুরাবে, এই পাশে ঘুরাবে, ঠিক আছে। এটা বলে ঘুরালে মনোকামনা পাপ পূর্ণ হয়, যদি কেউ পাপ করে থাকো তো ঘুরান দিয়েছি। এই পাশে দেখে দিচ্ছি, দেখো এরকম ভাবে ঘুরাবে, উল্টা দিকে ঘুরায় না, মানে তোমাদের ভাগ্যের চাকা উল্টা দিকে ঘুরে যাবে। বন্ধুরা খুব সুন্দর দেখো নকশা এখানে। আমি এখন চা খাচ্ছি বসে বসে, এই পাশে শেষ में बैठा है लामा जी। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अच्छा। और ये देखो ये मोनेस्ट्री कितना साल पुराना है? ये मोनेस्ट्री तो 600-700 साल पुराना। 600-700 साल। दूर दूर से लोग घूमने के लिए आ रहा है, दूर से। ये पास में एक मंदिर है, कुछ लिखा है इधर फोटो वीडियो नॉट अलाउ। আর এই পাশে দেখতে পাবে অনেক কিছু, এই পাশে দেখতে পাচ্ছ। इसको क्या बोलता है लामा जी? ये देखो इधर वाटर लैम्प। वाटर लैम्प। अच्छा ठीक है, वाटर लैम्प बोलता है भाई। अच्छा। আর ভিউটা দেখো পেছনের খুব সুন্দর। ये है डेटिस है, डेटिस देवता ही होते हैं ना, ये अल्टीमेट इनलाइटन नहीं है। जैसे डेटिस हम इंसान पहले में डेटिस के बारे में, हम इंसान ज़्यादा से 130, 40, 50 साल जिएंगे, कम से कम 1 सेकंड में भी मर सकते हैं। हमारे जन्म ज़्यादातर पोक से होते हैं। तो देवता ही का है ना, प्रकट भी हो सकते हैं, पोक से होते हैं, वो अपनी मर्जी के इतना काबिलियत है। तो एक देवता लगभग 40,000 साल जिएंगे। हाँ जैसे कि देवताओं की पूजा करने से खुश होते हैं, तो हमें थोड़ा उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। उसके 40 साल तो नहीं, हमारा कुछ हेल्प कर सकते हैं वो। तो ये ऐसे कुछ है एक। तो ये इस मनिस्ट्री के बारे में बताऊँ तो 1000 साल पुराने है। इसको बनाए तो अभी नालंदा विश्वविद्यालय में सुना था ना, बहुत इनलाइटन हो गए 2563 साल हो गए। बहुत इनलाइटन उनका मेलो चलता रहा पारी भाषा में लगभग 400 साल। उसके बाद उसमें मौखिक था, तो ये खत्म ना हो करके इसको लिखा गया। तो 4th सेंचुरी में गुप्त वंश के एक राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया। तो उस तरह फिर पाली में जो था उसको संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिया। तो 4 और 5 सेंचुरी मिड से 10-11 सेंचुरी में तक ये संस्कृत में था। इसी बीच 8वीं शताब्दी में पद्मसंभव एक बहुत महान आचार्य जो कश्मीर से पढ़े, इंडिया में फिर बाद में तिब्बत गए सिखाया। उसके साथ साथ नालंदा का एक और मास्टर्स शांति रक्षित करके उन्होंने भी सिखाया। तो 9 इस तरह वहाँ नॉलेज ठीक हो गया था तिब्बत में भी, जितना नालंदा में नॉलेज था ना उतना तिब्बत में लगभग हो चुका था। तो 9th-11 के लास्ट में तिब्बत में एक किंग आया लांगदरमा करके, जो इथिज्म जैसा था, बहुत तेज नेस सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। तो
तो इस तरह तिब्बत में पूरा नॉलेज लगभग यार फिर से ख़त्म हो गया। तो तिब्बत लोगों को मतलब अब इसको दोबारा इस पे प्रकाश डालने के लिए हमें इंडिया जाना होगा, क्योंकि वहाँ नालंदा है ना, जहाँ नॉलेज पूरा है। तो नालंदा ज्ञान ढूंढने आए, तो नालंदा भी 10th सेंचुरी 10-11 सेंचुरी में पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो 10-11 सेंचुरी के मिड में नालंदा डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो तिब्बत वाले को बहुत ढूंढने के बाद एक आचार्य मिला बंगाली, एक बंगाली आचार्य अतिशय दिवंकर श्री ज्ञान, हमारे भाषा में छो जन पढ़े अतिशय कहते हैं। अतिशय दिवंकर श्री ज्ञान जी को तिब्बत वाले रिक्वेस्ट करके तिब्बत ले गए, क्योंकि आप हमें दोबारा से प्रकाश डालें सिखाई करके। तो इस तरह उस बंगाली द्वारा नालंदा के शिष्य तिब्बत में जिंदा हो गए दोबारा से। तो 10th सेंचुरी में कश्मीर में जो पड़े तिब्बत के कुछ विद्वानों और आचार्य दिवंकर श्री ज्ञान जी के टाइम संस्कृत से तिब्बतन में ट्रांसलेट कर दिया। तो जब वो बंगाल के आचार्य 11th सेंचुरी में तिब्बत जाकर सिखाया, तो नालंदा का शिष्य तिब्बत में स्ट्रॉन्ग हो गया। तो वहाँ उनके बहुत स्टूडेंट हुए, उनके स्टूडेंट में से एक मेन स्टूडेंट था ड्रोमटेम्बा। उन्होंने इस मिनिस्ट्री की नींव रखी थी 11th सेंचुरी में। यहाँ से अभी रंगरिक का बिजली प्रोजेक्ट का कुआं खोदा है ना, उसी के पास जिसको पानी स्टोर करने के खोदा, उसी पर 3 घर था, इतने के थे उस समय। काजा मिनिस्ट्री और ये मिनिस्ट्री साहब एक सेम था। हमारे बुद्धिज्म में भी अभी है निंगमा कायुट करके है, प्रैक्टिस में फर्क है, बाकी उनका पर्पस सेम ही है। तो 11th सेंचुरी में वहाँ तक था। उसके बाद मंगोलियन ने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद काजा मिनिस्ट्री फिर बाद में सेक्ट आने लगे, तो शाखाएं हैं ना, तो काजा मिनिस्ट्री पिंगू के ऊपर चला गया। तो ये यहाँ है। तो उसके बाद ये मिनिस्ट्री आए। तो 13th सेंचुरी मंगोलियन के तोड़ने के बाद काजा पहले वहाँ शिफ्ट हो गए। हमें 14th सेंचुरी में लद्दाख में बहुत पुराना मिनिस्ट्री जो बनाया गया था 996 में, ठीक से कि एक गुरुजी ने इसको 14th सेंचुरी में रिबिल्ड किया इस टिले के ऊपर। तब से ये सारे स्ट्रक्चर 640 साल पुराने हैं। नीचे वाला वो मेडिटेशन केव्स है ना, वो और बाहर घुमाने और प्रेयर व्हील, ये तो 650 साल पुराने हैं। तो वो वाला साइड 2000 में बनाया गया, क्योंकि 1975 को अर्थक्वेक आया तो क्रैक हो गया। उसके बाद तोड़ के दलाला मस्जिद 2000 को बता रहे जो बड़ा जैसे बिल्डिंग है ना, बाकी वही है। बाकी ये सारे हर रूम में देखो ग्रंथ हैं जो 10th सेंचुरी में तिब्बत में लिखा गया। उनका किस प्रकार के कागज से बने वो आप उनको देख सकते हैं। कुछ हल्फ के मिक्स के, कुछ हल्फ आप इसे टूट जाते हैं, कुछ सड़ जाते हैं, कुछ हल्फ के मिश्रण जो अभी भी आप आराम से देख सकते हैं। ऊपर ये तमाम मकमल कोने में होटल हुआ है, ऊपर कोने में जाकर आप उस हल्फ को देख सकते हैं, सिंपल दिखाया हुआ है ऐसे। बाकी तो ये स्तूपा है, स्तूपा में कुछ में गठन रखे जाते हैं। जो कल में मान लो आप एक प्रोफेसर हो, तो ये भाई भी छोटे भाई भी प्रोफेसर है, ये अपना कुछ शेप ना डाले ऐसे कुछ, तो इसलिए उसकी सफाई के लिए कुछ स्तूपा में गठन डाले जाते हैं, कुछ स्तूपा में रिलैक्स डाला जाता है। रिलैक्स मतलब हम कॉमन बीइंग्स को जलाओ तो पूरा राख हो जाता है। ये मैंने देखा है कुछ गुरुजी जो एक मेडिटेशन लेवल के बाद समाधि में बैठे हैं, उसके बाद जलाओ तो लास्ट में उनके राख के साथ जो हड्डी है ना, ग्लोट की तरह गोल 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 बन के रह जाते हैं, उसे हम रिलैक्स कहते हैं। और फिर वो साफ जगह में रखो, उस किसी भी चीज़ को छोड़ आप सोना और चांदी को छोड़ के किसी भी चीज़ से छोड़ तो फूट जाते हैं। इसलिए हम उसको सोने चांदी के चम्मच से बॉल में लगा के खेलने वाले हैं। अब इस मिनिस्ट्री के जो गुरुजी हैं लोचन रंजन किनोट से है, उनका 19वां अवतार है। तो इनका अभी 19वां है, वो जिंदा है। 18 का जब डेथ हुआ तो ऊपर एक बड़ा जिसको आप बाद में देखोगे, उसके अंदर उनका रिलिक्स डाला है। 17वें अवतार का इसमें रिलिक्स डाला हुआ है। अब उनका ये है कि जैसे आप 1 तारीख को सोते हो, 2 तारीख को आप ही हो, उसी तरह उनका ये कि इस जन्म के बाद अगले जन्म का उनको थोड़ा बहुत ये रहता है। जैसे कि दलाई लामा जी 14 दलाई लामा है, वो कैसे चुनते हैं, जब 13 दलाई लामा का डेथ हुआ, 14 दलाई लामा, ये लीनेज नहीं है दादा के राजा का राजा, ऐसे नहीं। ये कहीं किसी गाँव में भी हो सकता है, कल तो मद्रास में भी हो सकता है, कल तो कहीं भी हो सकता है। तो तिब्बत में भी चाइना के बोर्डर के तिब्बत में इस तरह ये गुरुजी भी पहले उनका 19वां अवतार है। 16 अवतार तक तिब्बत में हुआ, 17-18 उन्हीं किन्नौर में हुए। तो दलाई लामा जी के जैसे 13 ऐसे हो गए। 14 में अमदो करके तिब्बत चाइना बॉर्डर वहाँ पे हुआ था। तो उसमें बचपन से वो बच्चा खुद बोलता है कि मैं ये हूँ, दलाई लामा हूँ, मेरे पिए का ये नाम है, पूरा सच पूरा। उसके बाद उनको लाया जाता है, फिर पिछले जन्म से जुड़े उनके सामान हैं उन छांटने को देते हैं। आप जैसे एक एने के उसके 10 एने सेंट बनाएंगे, वो छांट देगा। इस तरह फिर देवताएं चढ़ाएंगे, देवताओं से भी बहुत क्वेश्चन है, इस तरह नियुक्ति होता है। तो दलाई लामा जी ऐसे सेम सारे ऐसे। तो कुछ हमारे दलाई लामा जो छोटे गुरुजी का चेन होते हैं ना, तो अवतारी है कि नहीं है, तो ये दलाई लामा जी के पास जाके पूछते हैं। छोटे मोटे दलाई लामा खुद बता देते हैं, बड़े बड़ों को बहुत बड़ा पेपर होते हैं ऐसे। तो ये इस मनुष्य जो लोचन वो उनका वैसे नाम तेंजिन कर रहे हैं, फेमस है रिंचन जामो, लोसा होते थे। लोसा मतलब ट्रांसलेटर। इन्होंने अपने 6वां अवतार 10 सेंचुरी 10-11 सेंचुरी बीच में जो संस्कृत से तिब्बतन में ट्रांसलेट किया था ना, सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट इन्होंने किया था संस्कृत से तिब्बतन में, इसलिए द ग्रेट ट्रांसलेटर लोचा और रिंचन महान अनुवादक के नाम से जानते हैं ऐसे। बाकी ये पहले यहाँ तो मल्टीपल है ना,
ये पहले यहाँ क्लासिक जो होता था चैंपियन होता था, उसके बाद मंक्स कम थे तो ये रूम में, तो अब मंक्स बढ़ गए तो नीचे वाले रूम में, अब तो नीचे 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 रूम में ऐसे कुछ ऐसा कुछ। बाकी आप क्वेश्चन दीजिए क्या बाकी ये सारे पेंटिंग्स 10th सेंचुरी में तिब्बत से लाए गए हैं। अब इसके बारे में बोलते हैं ये जैसे कि हमारे एक मेडिटेशन इंडियन क्रिकेट के में बोले तो आप बोलेंगे ना हाँ रोहित शर्मा को ये स्ट्राइक आएगा, उसके बाद क्या राहुल आएगा, आप ऐसे दिमाग में है ना। इसी तरह मेडिटेशन लेवल में भी जैसे सांगदुई, जैसे मंचा और उसके बाद हेरुगा देशोक और जिसे काल भैरव, टिबेटियन मेडिटेशन में, तांत्रिक मेडिटेशन में इनसे आगे कुछ नहीं। ये इसका मेडिटेशन हो गया तो आप इनलाइटन हो। इसका अब ये जैसे मंचा का इस लेवल से इस लेवल इस लेवल से इस लेवल इस लेवल से ऐसे जाना होता है ना, ये 12 देवताएं हैं, तो इनका ये होगा, इनका फिर बहुत डीप हो जाएगा ऐसे कुछ ऐसे जी। ये अवतार है, अच्छा ये उनका छठा अवतार है। इसको बनाया इसलिए बनाया गया कि छठा अवतार में उन्होंने संस्कृत से पूरा ट्रांसलेट किया। अब देवताएं होते हैं ना, हम देवता राक्षस से भी हम सब इंसान है ना। अब कभी ये बुरा इंसान अच्छा इंसान कभी आप नहीं जान सकते, जब तुम आप टाइम स्पेंड नहीं करोगे फिर देवता का राक्षस का दोनों का फेस सेम ही होता है। अब इनका पूरा कितना 19 अवतार हो गया। अब ये इनको पता है कि इनके 19 अवतार कैसे गए, इनका एज ही ऐसा होता है। देवता जीते ही 40,000 साल ना उनके ऐसे ही उनका बीइंग से ऐसे चलते हैं। तो इसी बीच में हमें क्या कभी भी बीमारी हो सकती है, कभी भी मौत हो सकता है। इनको कभी भी बीमार नहीं हो सकता, कभी भी मौत नहीं हो सकता, लिमिटेड है। जिस दिन देवताओं का टर्म खत्म होगा उनको खुद को पता लग जाए, तब उनमें ईर्ष्या मोह रहता है। इस देवता को पूजा करो तो हमें हेल्प करने में, इसलिए नहीं पूजा करें तो थोड़ा गुस्सा तीसरा खोल देगा। ये हिंदुज़म में नहीं, बुद्धिज्म में भी है। किसी देवता को पूजा करो तो खुश, किसी देवता नहीं करो। अब इनलाइटन को पूजा करो या ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बुद्ध को आप पूजा करो या ना करो, आपकी पूजा करने से कहाँ पहुँचेंगे? वो तो जहाँ पहुँचना पहुँच चुके, नहीं पूजा करने से कहाँ रुकेगा? वो तो फिर पहुँच चुके। इसलिए उसको सबसे अच्छा लगा बोलने से खुशी और सबसे बुरा लगा बोलने से दुख नहीं होगा, वो समझ चुके। अब इनको पूजा करें तो खुशी और पूजा ना करें तो ऐसा हो सकता है। वो तो लाइफ एंड बर्थ से फ्री हो गए ना। हाँ इनकी तो 40,000 एज है लेकिन एज तो है। वही लेकिन तो हाँ ये तो भाई ये तो सेना में आती है तान दे हुआ। तो हम लोग अच्छे अच्छे चलते हैं ना, अच्छी शादी नहीं है लोगों की तरह। पहले इनका ये होता है ये क्लास स्क्वायर है ना, जैसे कि शमशान में किसी को जलाने के बाद कब्र में छोड़ देगा ना, उसको काट काट के फिर ऐसे नहीं ऐसे ऐसे साधक ऐसे रहते हैं, ऐसे जोड़ के ऐसे बैठते हैं। आजकल तो ना प्रैक्टिस नहीं है, ये नागार्जुन मध्य भारत ये सारे आसन नागार्जुन उसको बहुत सारे काफी सारे बुद्धिस्ट हैं। 59 को अरुणाचल बॉर्डर से इंडिया इंटर किया, उसके बाद 83 को या उससे ये भिंचू मतलब उनका रेजिडेंस हुआ करता था। अच्छा यहाँ रुके थे बाद में उनका यहाँ दीदी आए थे ना, एक दिन उनका अभी नीचे बुक से फोटो ये लामोजी आए थे 1959 में। नहीं 1959 में वो चाइना से भाग के आई, अरुणाचल बॉर्डर से एंट्री किया। बाद में 1970 या 71 के टाइम पहली बार स्थिति आई। अच्छा ये 10th सेंचुरी। अब ये एक कागज के मिश्रण से उनके लिखा हुआ है, उस समय वो आज का प्रिंटिंग कारखाना नहीं होता ना, सारे लिखे हुए हैं। इनका शेप ऐसा होता है, तिब्बत में हमारे यहाँ वैसे भी डेजर्ट एरिया है, इतना प्लांट नहीं होते तो कागज मिलना मुश्किल होता ना, तो ऐसे बना के अगर आप ये क्लॉथ में लिखा, आप ये पढ़ेगा तो आप दूसरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चेंज करेंगे। বন্ধুরা ভিউটা দেখো খুব সুন্দর। আজকে আমি থাকার বন্দোবস্ত করেছি কি মনিস্ট্রি, এই পাশে আমি আছি, রুমটা দিয়ে যাবো এই পাশে একটা বন্ধু আছে, জানি কোথায় বাড়ি ওর, জিজ্ঞাসা করবো। খাবার দাবার সব বন্দোবস্ত আছে এখানে। এই দেখো रूम 104। ये देखो एक भैया है। भैया तुम कहाँ से हो? कर्नाटका। मिलकर बहुत अच्छा लगा, भैया भी घूमने के लिए आया। ओके मैं तो साइकिल में आया। देखो भैया इस साइड में बेडिंग है, मेरा इधर बेडिंग है। आ रही जगह से देखो बहुत खूबसूरत नजारा है, जरूर सब लोग घूमने आना। हिमाचल प्रदेश स्पीति वैली। आज क्या बोला कि जब खत्म करेंगे तो भाई भालो থাকবে, সুস্থ থাকবে, টাটা বাই বাই।